نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے، لوٹ مار کرتے کرتے مدینے کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو اس میں سارے کافروں کا مال شامل تھا۔ ایک قافلہ جایا کرتا تھا، سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے۔ تو جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، تو آج حضور علیہ السلام نے ارادہ کرم کیا کہ ان کے قافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس قافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، جنگ کا تو ارادہ نہیں تھا۔ 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے، اور سواریوں کی تعداد اس طرح کی تھی کہ بعض اوقات ایک ایک سواری پر 3 لوگ سوار تھے، تو 2 آدمی سوار ہوتے تھے، تیسرا پیدل چلتا تھا۔ اور قربان جائیں، حضور علیہ السلام کی مساوات کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک تھے، حضرت مولا علی تھے، اور جناب زید تھے۔ 2 سوار ہوتے تھے، ایک پیدل چلتا تھا۔ جب 2 غلاموں کے سوار ہونے کی باری تھی، آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی، حضرت علی نے اور جناب زید نے عرض کی حضور آپ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے نہ تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے اور نہ تمہیں ثواب کی ضرورت زیادہ ہے، مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور میں ثواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں، لہذا تم اگر پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا میں بھی پیدل۔ یہ چیز مساوات پیدا کرتی۔ حضور اس طرح جا رہے تھے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، جب پتہ چلا نا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ایک بندہ جلدی سے دوڑایا، مکے جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے، تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ خود اس طرح کیا کہ جس رستے سے وہ جا رہے تھے وہ رستہ بدل کے رستہ کوئی اور اختیار کر لیا۔ قافلہ بھی بچ کے نکل گیا۔ اہل عرب کا طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا، ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے بریکنگ نیوز، ہے نا جی، چور آ گیا، پھر وہ کئی دفعہ صحیح بھی آتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ ہر شے کی تو بریکنگ نیوز ہے، اور کھولیں تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، میری نیوز بھی نہیں نکلتی، بریکنگ کیا نکلنی ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی ہر بات کو تسلیم نہ کر لیا کریں، سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر خبر کو نہ مان لیا کریں۔ یہاں تو اتنا عجیب حال ہے، ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، بیچارے پچھلے دنوں وضاحت دے رہے تھے، خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں بھائی، کسی نے میڈیا پہ خبر دے دی کہ میں فوت ہو گیا ہوں، وہ کہہ رہے تھے مہربانی کرو مجھے سونے دو، سارا دن ٹیلی فون آتے ہیں اور لوگ مجھے فون کر کے میری تعزیت کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، کیا صرف تھوڑا سا میڈیا چلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے؟ بہرحال انہوں نے جو بندہ بھیجا تو بریکنگ نیوز کا وہاں بھی ایک طریقہ تھا، اونٹ کے کان ناک کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا، جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا، اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے۔ اب وہ جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے، لوگ دوڑے باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا نکلو تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان۔ وہ ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے، انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پستی میں لے جاتی ہے وہ اس کا تکبر ہوتا ہے۔ تو مینوں جانتا ہی نہیں، تجھے میرا پتہ ہی نہیں، یہ لے ڈوبتی ہے چیز لوگوں، انہیں بھی لے ڈوبی۔ انہوں نے کہا جی آپ نہیں واپس جانا، اب چلو۔ 1000 کا لشکر، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ، شراب کے مٹکے ساتھ، 10 اونٹ روز ذبح ہو رہے ہیں، سردار دعوتیں پکا رہے ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے۔ بدر میں پہنچ گئے، مسلمان بھی 313 پہنچ گئے۔ یہ ساری رات شرابیں پیتے، وہ ساری رات سجدے کرتے، یہ نعت گانے سرور کی محفلیں سجتی اور وہ رسول پاک کی تقریر سنتے، حضور کے خطبات سے فیض یاب ہوتے۔ عمیر بن وہب کو بھیجا ابو جہل نے کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے، اس نے جا کے کہا کہ 312 313 310 اتنے۔ کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے، ان کو سویرے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جائیں گے، مکے جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے، یہ تکبر ہے نا۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا ہیں 312 ہیں 313، میرے اندازے میں 310، لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں۔ میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ارادہ بڑا پکا لے کے آئے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تو جنگ کے لیے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو قافلے کا تھا، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ چیزیں مسلط نہ کرو، ہم نہ اپنا مسلط کرتے ہیں۔ یعنی تراویح پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، بھئی تو پڑھ رہا ہے نا تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے، لیکن اپنا مسلط نہ کر، دعوت دے، تبلیغ کر۔ نفل پڑھنے والا سب کو گناہگار ہی سمجھنے لگ جاتا ہے،
असर की पहली 4 सुनते तू क्यों नहीं पढ़ता, तू क्यों? भाई आप मुसल्लत करेंगे, आप राय दें और राय दे के साइड पे हो। मुसल्लत करने की तो इजाजत नहीं, हुजूर का तो हुक्म चल सकता है ना, चलता है ना। लेकिन हुजूर ने भी सहाबा से पूछा, भाई वो तो लड़ने आ गए हैं, अब क्या करना है? तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, हुजूर करना वो है जो आपने फरमाना है। हजरत उमर कहने लगे, हुजूर तलवारों को तो जंग लग गया है। और जनाब अली शेर खुदा मुर्तजा मुश्किल कुशा गल आता मौला कायनात फरमाने लगे, हुजूर अली और तलवार ये तो रिश्ता ही बड़ा पुराना है, तैयारी करें। हुजूर का ख्याल था कि अंसार भी तो बोले ना, ये तो सब मुहाजिरीन बोल रहे हैं। अंसार को जब समझ आई ना कि इशारा हमारी तरफ है, तो हज़रत साद बिन उबादा उठे, कहने लगे, हुजूर आपका इशारा हमारी जानिब है? फरमाया हाँ। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्की पे भी लड़ेंगे और दरिया में भी लड़ेंगे। हुजूर इंसानों से भी लड़ेंगे और आप हुक्म देंगे तो जिन्नों से भी लड़ेंगे। वो बैठे तो हजरत मिकदाद उठे और कमाल कर दी, कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप हमसे इरादा पूछ रहे हैं? हम कोई हजरत मूसा की कौम है जो अपने नबी से कह देंगे आप लड़े और आपका खुदा लड़े? सोनिया, हम आपके साथ लड़ेंगे और आपके कदमों पे जाने भी कुर्बान करेंगे। नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समुंदर में और जहां को महव कर दे नाराए अल्लाहु अकबर में। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में, मोहम्मद की क़यादत में। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पे, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जज्बात सुने तो फरमाया, चलो ना चले, पर छोटे छोटे बच्चे वापस कर दो। एक छोटे बच्चे थे उमैर बिन नबी वकास, हजरत साद बिन नबी वकास के भाई, जमीन पे लेट के रोने लगे, सोनिया मैंने भी जाना है। कंप्यूटर के लिए नहीं रो रहे, मोबाइल के लिए नहीं रो रहे, नई साइकिल के लिए नहीं, शहादत के लिए। हुजूर मैं लड़ूंगा, अब मुझे लेके तो चले। या रसूलल्लाह मैं ताकतवर निकलूंगा, लेके तो चले। उनके आंसू देख के हुजूर ने फरमाया, ले चलो ना साथ। फितरत मुस्कुरा रही थी। हजरत साद बिन उबादा एक दूसरे से कह रहे थे, हमसे लड़ने आया है अबू जाल? जिस कौम के बच्चों की शुजात का ये आलम है, उस कौम में अली का क्या हाल होगा और अमीर हमजा का क्या आलम होगा? ये हमारे साथ मुकाबला करेंगे ये लोग। और छोटे इतने थे, हजरत उमैर के तलवार अपने हाथों से अपने गले में नहीं लटका सकते थे, वो बड़े भाई ने लटकाई। मैदान में निकले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीर की, फरमाया, तुम्हें पता है तुम किस जन्नत की जानिब जा रहे हो? वो जन्नत है जिसकी चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है। हजरत उमैर बिन हमाम अंसारी एक सहाबी थे। जब करीम ने फरमाया ना, जन्नत की चौड़ाई, किसी चीज की लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। जब फरमाया ना कि चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है, तो हजरत उमैर बोले, कहने लगे, वाह 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 वाह। खजूरें खा रहे थे, हुजूर ने फरमाया, तू बड़ी वाह वाह कर रहा है, सोनिया इतनी जन्नत प्यारी है तो हम दूर क्यों हैं? ये देना जरा तलवार। जल्दी से मैदान में निकले, अल्लाह ने उन्हें शहादत अता फरमाई। रात सारी वो मस्त रहे शराब के नशे में, और हुजूर सारी रात मुसल्ले पे रहे, सारी रात दुआएं मांगी। पता क्या कहा? ऐ अल्लाह, ये मेरी कुल कमाई थी 313 जो मैं लेके आ गया हूं, अगर ये हलाक हो गए तो कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा? इनकी मदद फरमा। और एक रात पहले सफ़े भी सीधी कराई, बल्कि सफ़े सीधी कराते हजरत सवाद के पेट पे छड़ी लग गई तो उन्होंने कहा, हुजूर बदला दें। हुजूर ने कपड़ा हटाया तो उन्होंने वजूद चूमना शुरू कर दिया। हुजूर ने हमें सबक दिया कि सफ़े भी सीधी करानी है और दुआएं भी करानी है। सफ़ भी सीधी हो, मुसल्ला भी आबाद, दोनों काम करने। और फिर तवक्कुल हो, फिर तुम्हारा दिल जमे कि इंशाअल्लाह फतह अल्लाह मुसलमानों को देगा। रोने ना रोया करो, मईशत के, मुआशरत के, गरीबी के, तंगदस्ती के, फकीरी के रोने ना रो, अल्लाह की मदद को आवाज दो। हमने वो लोग भी देखे हैं बेचारे जो ना इस्लामी मईशत पे बात करते हैं, ना मुआशरत पे, ना अखलाकियात पे, और जब भी बात करेंगे कहेंगे हुजूर को तो इल्म ही कोई नहीं था, कारी कुछ नहीं सकते, मजबूर महज थे माज़अल्लाह। ये तकरीरें करेंगे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं, पर बाज़ औक़ात ना दिल को तकलीफ होती है कि यार इस तरह की बातें क्यों करते हो। ये मुस्लिम है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, एक रात पहले हुजूर ने छड़ी पकड़ी और मैदान बदर में जाके फरमाया, लकीर खींच के फरमाया, यहाँ अबू जाल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा, यहाँ वलीद मरेगा। हुजूर ने लकीरें खींची। फरमाते हैं बाकी लोग जंग लड़ रहे थे और मैं चुपके चुपके लकीरें भी देख रहा था कि हुजूर ने लगाई थी। फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम,
कोई काफिर 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ, जहां नबी पाक ने लकीर लगा दी थी वहीं मरा है। ये शान अल्लाह ने हुजूर को दी है, हुजूर के इल्म मुबारक का ये कमाल है। ना इस तरह की बातें करें जिससे उम्मत तकसीम हो। सवेरे जंग शुरू हुई, सुबह 3 काफिर मैदान में निकले, उतबा, शैबा और वलीद। 3 अंसारी मुसलमानों की जानिब से मुकाबले में निकले, लेकिन वो तकब्बुर जो होता है ना, वो जान छोड़ता नहीं। तो वलीद कहने लगा, उतबा शैबा कहने लगे, हमने नहीं इनसे लड़ना, ये तो हमारे पाए के नहीं, कोई कुरैश में से भेजो, कुरैश में से। आपने कौन सा नाराज होना है, ऐसे चौधरियों के बच्चे, सेठों के बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि सारी जिंदगी लोग चौधरी साहब कह के दिमाग ही नहीं ठीक होने देते, वो रह जाता है काम से ही। मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे, मेरे उस्ताद जी, किसी घर में इल्म चला जाए तो कई दफ़ा निकल आता है, लेकिन किसी घर में पीरी मुरीदी चली जाए वो नहीं निकलती, क्योंकि पीर का बेटा जिस तरह का भी हो, लोग पीर मान ही लेते हैं। और इसी तरह किसी घर में चुदराहट चली जाए तो वो भी बाहर नहीं आती। बच्चों को लोग चौधरी कह देते हैं, उस बेचारे का भी दिमाग खराब होता है, कुछ कर ही नहीं पाता। ये चुदराहट हर जगह मुसीबत खड़ी करती है, इल्ला माशाअल्लाह। वलीद कहने लगा, हमने नहीं लड़ना, ये हमारे पाए के बंदे पे जो अंसारियों से लड़े। तो फितरत मुस्कुरा के कह रही थी, लगता है तुम्हारा जल्दी मरने का इरादा है। ठीक है, फिर नबी करीम ने फरमाया ठीक हो गया, चलो। अबू उबादा बिन जर्राह उठे, हजरत उबैदा उठे, हुजूर ने फरमाया अब अल्लाह का शेर अमीर हमजा उठे, हजरत अमीर हमजा उठे। तीसरे नंबर पे हुजूर ने फरमाया, या अली युकुम, अली उठना जार, जरा निकलना मैदान में। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, मौला कायनात उठे, हजरत अमीर हमजा उठे, हजरत उबैदा उठे। उतबा के मुकाबले में गए, हजरत अमीर हमजा कत्ल किया अपने दुश्मन को। शैबा के मुकाबले में गए हजरत उबैदा, लेकिन हजरत उबैदा बूढ़े थे, उसने उन पे हमला किया, उनका पैर काट दिया। हजरत अली निकले वलीद के मुकाबले में, 2 ही ज़रबे लगाई, वलीद का सर काट के हजरत उबैदा की मदद को भी पहुंच गए हजरत अली, उसको भी कत्ल किया। फिर हजरत उबैदा को अपने कंधों पे उठाया, नबी पाक की बारगाह में लाए। उन्होंने हुजूर के कदमों को चूम के कहा, हुजूर मुझे शहादत मिली कि नहीं मिली? तो नबी पाक ने फरमाया, रब ने तुम्हें शहादत का दर्जा दे दिया। अब मैदान में जिहाद शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, लोग निकले। हजरत जुबैर बिन अवाम भी बर्छी लेके। एक काफिर निकला, आस उसका नाम था, वो सारा लोहे का लिबास पहन के आ गया, सिर्फ आंखें नजर आ रही, बड़े मुसलमानों को जख्मी कर रहा था, कैसे लड़े उसके खिलाफ। तो हजरत जुबैर बिन अवाम के हाथ में बर्छी थी, बस आंखें नजर, इतनी जोर से अल्लाह अकबर कह के बर्छी मारी ना कि उसका आपने गला ही काट के रख दिया, हर चीज उसके दिमाग से बाहर निकल आई, जमीन पे तड़पा। वो बर्छी इतनी पसंद आई नबी पाक को। हुजूर को सिर्फ तस्बीह पसंद नहीं आती, बर्छी भी पसंद आती। हुजूर को सिर्फ तिलावत वाला मोमिन नहीं, जिहाद वाला भी पसंद आता है। असल पता मसला क्या है कि मुसलमान ना एक चीज देते हैं, फिर उसी का शिकार और दूसरी को छोड़ देते हैं। दीन हमा पहलू है, आप सजदे की बात भी करें, जिहाद की भी करें, दोनों दीन है। और ये याद रखें कि इसी से मुसलमान मजबूत होता है। हुजूर को बर्छी इतनी पसंद आई कि आपको बुखारी में मिलेगा, नबी पाक ने बर्छी लेके बतौर यादगार के अपने पास रख ली। फिर वो बर्छी हजरत सिद्दीक अकबर के पास रही, फिर वो बर्छी हजरत उमर के पास रही, फिर हजरत उस्मान के पास रही, फिर मौला अली के पास रही। मैं उन लोगों को क्या कहूँ जिन्होंने मक्के मदीने में नबी पाक की यादें मिटा दी। सोने ने तो सहाबा की यादगार तलवारें भी संभाल के रखी, और तुमने हुजूर ने जिस कुएं से पानी पिया था वो कुआं खत्म कर दिया। तुमने जहां हुजूर ने गुस्ल किया था वो जगह खत्म कर दी। क्या बात करते हो साहब, वो जगह तो हमारे लिए चूमने के लायक थी और आने वाली नस्ल को वहां अकीदत के फूल बरसाने थे। तुमने क्या सलूक किया? जंग आगे बढ़ी, तलवारें चमकी, 2 छोटे बच्चे। ओ नौजवानों, खुदारा वापस लौटो अपने दीन की तरफ। 2 छोटे बच्चे, और ये इस तरह के लफ्ज हैं, मुझे क्या लेने दो वो देसी थे, मुझे क्या लेने दो पेंडू थे। वो 2 बच्चे आके हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से पूछते, कहते हैं चाचा जी अबू जाल किधर है? ये लफ्ज है हदीस में, चाचा जी, चाचू किधर है अबू जाल? कहते मैंने हास्की का पुत्र, तुमने क्या कहना है? तो छोटे वाले को बातें भी सही नहीं करने आती थी, कहने लगा चाचा उसे मारना है। कहा क्यों मारना है? इसलिए कि हमने सुना है वो हमारे नबी को बुरा कहता है माज़अल्लाह। कहा तुम अगर नाम मार सके तो छोटा कह रहा है, कहता नाम मार सके तो मरेंगे तो सही ना हुजूर के नाम पे।
हफीज जलंधरी कहते हैं वो कह रहा था मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, माज़अल्लाह हुजूर को बुरा कहता है। मैदान में आए दोनों, जोर जोर से तलवारें मारी, घोड़े से गिरा लिया अबू जाल। हजरत माज जो थे बड़े वाले, उनका बाजू कट गया, थोड़ा सा गोश्त साल लटक रहा था। ये नरमो नाजुक बच्चे हमारे, ये मैदानों में काम करेंगे, इनको थकावट होती है, जो पैनाडॉल की गोली खा के सोते हैं रात को। बाजू लटक रहा था, हजरत माज ने उस पर अपना पैर रखा, झटका दे के उतार दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को कहा, उन्होंने गर्दन काट दी अबू जाल की। दोनों तलवारें लेके हुजूर के पास गए। छोटा कहता है हुजूर मैंने मारा है, बड़ा कहता है हुजूर मैंने मारा। कहता है नहीं तू तो पीछे था, मैंने मारा है। और कहते नहीं तू तो बाद में आया था, मैंने मारा है। फरमाया तलवारें दिखाओ ना। जब तलवारें दिखाई तो हुजूर फरमाने लगे तुम दोनों नहीं मारा है, बराबर का सवाब है। जिसका बाजू कटा था, करीम रसूल ने फरमाया इधर ला ना बाजू। वो बाजू लाए, हुजूर ने उसी जगह रख के ना दोबारा लुआब दहन लगाया। हजरत माज हजरत उस्मान गनी के जमाने तक मौजूद रहे। फरमाते हैं कटने से पहले ताकत कम थी, जब हुजूर ने जोड़ा है तो ताकत पहले से ज्यादा हो गई है, पहले से ज्यादा हो गई है ताकत। कहते हैं कि नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत आकाश आए, कहने लगे सोनिया मेरे जज्बात कंट्रोल में नहीं आ रहे, मैं इन बेईमानों के गले काटूंगा, पर मेरे पास तलवार ही कोई नहीं। कोई तलवार हो तो मारू ना। एक दरख्त की जड़ थी, टहनी थी, हुजूर ने यूं करके खींची, फरमाया ये लेना तलवार। कहते वो हुजूर के हाथों में टहनी थी, मेरे हाथों में आती गई और तलवार बनती गई। फिर उससे काफिर काटे हुजूर के मौजज़ात। 5000 फरिश्ता भेजा अल्लाह ने जंगे बदर में। कितने? ये मैंने बात इसलिए बयान की है कि इकबाल ने एक मशवरा दिया, कहते हैं तू फिजाए बदर तो पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से, कितार अंदर कितार अब भी। इकबाल क्यों ऐसा कह रहा है? तो इकबाल कहते हैं इसलिए कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। 5000 फरिश्ता आया। मुझे तो लगता है फरिश्तों ने भी दुआ की थी कि या अल्लाह हम तेरे नबी की क़यादत में लड़ना चाहते हैं। फरिश्ते आए, सुपर पावर थी रूमा, बड़ी ताकतवर समझती थी। ईरान, रूम, ये कैसर किसरा, बड़ी ताकतें थी। अरब के लोग तो बोरिया नशीन थे, सहराओं में निकल के उन्होंने उलट पलट के नहीं रख दी सारा कुछ। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा था कि मुसलमान दोबारा से कभी मैदानों में आएंगे, तो इकबाल कहने लगे हाँ हाँ जरूर आएंगे, आएंगे, ये निकलेंगे। क्या किस तरह? कहने लगे मैंने फरिश्तों से सुना है। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से, कुछ ही कहते हैं फरिश्तों को। इकबाल कहते हैं रात वो बातें कर रहे थे, मैंने सुना है कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो जागेगा, वो बेदार होगा। ये कुदसियों से सुना है मैंने, वो आएगा मैदानों में। गुमसान का रन पड़ा, अबू जाल कत्ल हुआ, उमैया कत्ल हुआ, कुछ देर के बाद मारा गया। अबुल बुख्तरी और उतबा और शैबा और वलीद, बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए। 70 काफिर मारे गए, 70 मुसलमानों ने कैदी बनाए, बाकी भाग गए और सामान छोड़ के भाग गए और घोड़े छोड़ के भाग गए। और जिसको इधर भागने का मौका मिला इधर भागा, कह रहे थे इनको बांध के ले जाएंगे, और जिसको इधर भागने का मौका मिला वो इधर भागा। पीछे से हज़रत साद बिन उबादा बोल रहे हैं, कहने लगे हमने तो सुना था मर्दों से मुकाबला है, तुम तो बीबियों से भी कमजोर निकले हो, क्या भागते हो? 14 मुसलमान शहीद हुए सिर्फ। 3 दिन हुजूर ने क़याम किया बदर में, कुर्बान जाएं।